अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MBBS स्टडी फैंडम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के मेजर टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है बैक्टीरियोलॉजी, जिसके 2 पार्ट्स हैं इस बुक में, बेसिक बैक्टीरियोलॉजी एंड क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी। पेपर में इनकी वेटेज एससीक्यू के लिहाज से 4 एससीक्यूज हैं, जिनमें से 1 एससीक्यूज बेसिक बैक्टीरियोलॉजी में से आएगा और 3 एससीक्यूज क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी में से आएंगे। एंड एमसीक्यूज वेटेज 14 एमसीक्यूज हैं, जिसमें से 4 एमसीक्यूज फ्रॉम द बेसिक बैक्टीरियोलॉजी एंड 10 एमसीक्यूज फ्रॉम द क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी। Let's start with chapter number 1, basic bacteriology का chapter 1 है bacteria compared with other microorganisms। First paragraph start करते हैं, microbes that cause infectious diseases। Agents in humans that cause infectious diseases belongs to 5 major groups: bacteria, fungi, protozoa, helminths and viruses। These all organisms belongs to a different kingdom, like we see in table 1.1. Bacteria, helminths, pathogen microorganisms. Helminths belongs to kingdom Animalia. Protozoa belongs to kingdom Protist. Fungi belongs to kingdom Fungi, and bacteria belongs to kingdom Prokaryote. Viruses are non-cellular organisms, so they don't belong to any kingdom. Important feature of these microbes can easily be explained in table 1.2. We can see the comparison here between viruses, bacteria, fungi, and protozoa. Viruses are non-cellular. Bacteria, fungi, and helminths are cellular. Their diameter viruses are the smallest organisms seen in the electron microscope, while bacteria, fungi, and protozoa have size larger than the viruses. As we can see, nucleic acid composition. Viruses have either DNA or RNA, but bacteria have both DNA and RNA. Fungi has both DNA and RNA, and protozoa also have both DNA and RNA. Type of nucleus: viruses are acellular, so they don't have any nucleus. Bacteria are prokaryotic. Prokaryotic are the organisms which don't have any nucleus. So bacteria also don't have a nucleus, but the genetic material spread in the cytoplasm. Fungi are eukaryotic. They do have a nucleus. Protozoa and helminths are eukaryotic, so they do have a nucleus. Organelles: ribosome and mitochondria absent in viruses, but ribosomes present in bacteria, which are 70s. Fungi and protozoa have 80s ribosomes. Mitochondria absent in viruses. Bacteria may be absent, and fungi and protozoa have mitochondria. Nature of outer surface. Outer covering of virus is made of a protein coat called capsid and lipoprotein invalve. Outer covering of bacteria is cell wall made of peptidoglycan. Fungi cell wall made up of chitin, and protozoa and helminths don't have a cell wall but covered by a flexible cell membrane. Motility. Viruses don't have motility. Some bacteria have motility. Fungi are non-motile, and most of the protozoa and helminths also have motility. Mode of replication. Viruses replicate intracellularly, so they don't replicate by benificial. Bacteria replicate by benificial. One bacteria divides into 2. They grow in exponential. Fungi grow by budding or either mitosis. Helminths grow by mitosis. Next, eukaryotes and prokaryotes. The major difference between eukaryotes and prokaryotes is given in figure in table 1.3. First difference between prokaryote and eukaryote is that the nuclear material of prokaryote is not covered by a nuclear membrane, but eukaryote nuclear material is covered by a nuclear membrane. Next is mitotic division. Prokaryotes bacterial cells divide by bifurcation, while the eukaryotic cells divide by mitotic divisions. DNA associated with histones. Histone proteins are characteristics of eukaryotic cells, so they are present in human cells but not in the prokaryotic bacterial cells. Chromosome number. As we know, prokaryotic bacteria are unicellular, so the chromosome number 1 is 1, while in eukaryotic the chromosome number is more than 1. Membrane-bounded organelles such as mitochondria and lysosomes, they are absent in prokaryotic as they don't have any organelles, while eukaryotic cells have all organelles. Size of ribosome. Size of ribosome is 70s in prokaryotic cells and 80s in the eukaryotic cells. Cell wall containing peptidoglycan. Cell wall is present in prokaryotic bacterial cell, which is made up of peptidoglycan, while the eukaryotic cells don't have the cell wall. So their outer covering is cell membrane. The question that arises from these topic is give difference between bacteria or virus, give difference between eukaryotic and prokaryotic cells. That are 2 structure bacterial cells. पहले देखते हैं shape and size of bacteria. Bacteria को shape के accordingly 3 major groups में divide किया जाता है: cocci are round shape bacilli are row shapes and spirochetes are spiral in shape. Some bacteria have variable shapes, so they are called paleomorphic या pleomorphic bacteria. Shape of bacteria basically determine होते हैं rigidity of the cell wall से. In addition to their shapes, arrangement of bacteria की basis पर भी bacteria को divide किया जाता है. They are either in pair or in chains or either in grape-like clusters. As we see in figure 2.1, A1 में हम देख रहे हैं कि grape-like cluster, so they are called staphylococci. A2 they are in chains, so they are called streptococci, and A3 and A4 are in pairs, so they are diplococci.
B1 फिगर में हम देख सकते हैं, दे आर रोड शेप बैक्टीरिया पेयर्ड है विद स्क्वायर एंड्स. B2 are rods but with rounded end. B3 are rods with club shaped. B4 are rods with pointed ends, and B5 are coma shaped. C1 are spiral and C2 are also tightly coiled spirals. Size of bacteria. Size of bacteria ranges from 0.25 to 5 micrometer. The smallest bacteria is mycoplasma, which is same as the size of largest spokes virus. The longest bacteria is of 7 micrometer. Next है structure of bacteria. We will discuss different structures of the bacteria. सबसे पहले हम इसका outermost component discuss करेंगे, cell wall, जो कि सब bacteria में present होती है except mycoplasma, that is the exception, that only have a cell membrane around it. Cell wall के outside पे either capsule, flagella and pili present हो सकते हैं, जो कि सब bacteria में नहीं होंगे, specific bacteria में present होते हैं. Cell wall located outside the cytoplasmic membrane and it is made of peptidoglycan layer. Peptidoglycan इसे structural support provide करती है as well as the characteristic shape of the cell. Next we discuss करेंगे हम cell wall of gram positive and gram negative bacteria. इसके हम best explain करते हैं with the help of diagram. इस diagram में हम देख सकते हैं फिगर 2.4 में सबसे बेस लेयर है, cytoplasmic membrane है, इसकी आउटसाइड पर पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है. दोनों राइट एंड लेफ्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर का डिफरेंस हम देख सकते हैं. पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर सेल ग्राम पॉजिटिव सेल्स में थिक है, मल्टीपल लेयर्ड है, बट इन राइट साइड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लेयर एंड इट्स वेरी थिन. नेक्स्ट वी कैन सी टिकोइक एसिड, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल से प्रोट्रूड आउट कर रहा है टू द आउटर सरफेस, व्हाइल राइट साइड पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड नहीं प्रेजेंट. देन वी कैन सी there is a space in between the cell membrane and peptidoglycan layer of the gram negative bacteria. इसे हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं. स्पेस में लैक्टोमेजेस प्रेजेंट होती हैं. these are the enzymes जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट की पेरिप्लाज्मिक स्पेस में प्रेजेंट होती हैं. इन एंजाइम्स के बेनिफिट क्या होता है कि एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स जो हम देते हैं वो बैक्टीरिया उनको डिग्रेड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस लैक्टोमेजेस. देन वी विल डिस्कस table 2.2. This is the third component, lipopolysaccharide endotoxin, that is only present in gram negative bacteria but not in gram positive bacteria. We can see from the here peptidoglycan layer है that is thicker in gram positive, thin in gram negative. टिकोइक एसिड फाइबर्स हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं आउटसाइड द पेप्टाइडोग्लाइकन. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड नहीं प्रेजेंट होता. इन कंट्रास्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव कॉम्प्लेक्स आउटर लेयर लिपोपॉलीसेकेराइड और लिपोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है. सेल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन में पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है जिसमें बीटा लैक्टोमेजेस प्रेजेंट होती हैं जो कि बीटा लैक्टम ड्रग्स एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स को डिग्रेड करती हैं. Then the cell wall has several important properties. Three major properties हैं सेल की. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एंडोटॉक्सिन होता है जो कि लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर होती है. Then it is polysaccharide and proteins are antigens. इसकी सरफेस पर एंटीजेंस होती हैं. प्रोटीन एंटीजेंस जो कि इसकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं. थर्ड इज फॉरेन प्रोटीन्स. सेल वॉल में फॉरेन प्रोटीन्स होती है जो सेल में पोस्ट प्रोड्यूस करती हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. Then in cell wall of acid phosphaterias some bacteria such as mycobacteria tuberculosis ग्राम स्ट्रेन नहीं लेते क्योंकि इनकी सेल वॉल में हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट है जिन्हें माइकोलिक एसिड कहते हैं, जो कि इसकी वॉल का कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. डोंट स्टेन बाय ग्राम स्टेनिंग बट स्टेन बाय अनदर स्टेन दैट इज एसिड फॉस्ट. देन नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है ईच कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल. पेप्टाइडोग्लाइकन. पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंटरवॉन नेटवर्क होता है. इट्स कंपोज्ड ऑफ सिंगल कोवलेंटली लिंक्ड मैक्रो मॉलिक्यूल. इसकी बैकबोन मिलकर बनी है. फिगर 2.5 में देखते हैं. बैकबोन मिलकर बनी होती है नैम. नैग इज N-acetyl glucosamine molecule and NAM is N-acetyl muramic acid. We can see कि NAM के साथ एक टेट्रापेप्टाइड चेन अटैच्ड है. ये टेट्रापेप्टाइड चेन्स अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है जो कि डी आइसोमर्स होते हैं. Then we can see opposite साइड पर एक ग्लाइकन चेन है, उसके साथ भी टेट्रापेप्टाइड चेन है. They both are linked by interbridges. ग्राम पॉजिटिव सेल्स में इंटरब्रिजेस जो हैं वो डी-एलानिन से मिलकर बनी होते हैं. नेक्स्ट वी कैन सी कि इस स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? वो है पेप्टाइड क्रॉस लिंक जो कि इन दोनों टेट्रापेप्टाइड्स के दरमियान में हो रहा है. Peptidoglycan layer, that is this peptidoglycan layer is only present in bacteria. As a result जब भी हम एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स लेते हैं तो इस पर ह्यूमंस को कोई इफेक्ट नहीं होता. सो दिस इज अ कंपोनेंट दैट इज अ मेजर टारगेट फॉर द एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स. नेक्स्ट वी कैन डिस्कस के लाइकोसोम एंजाइम्स होती हैं प्रेजेंट इन ह्यूमंस, टीयर्स, म्यूकस, सलाइवा, और ये क्या करते हैं? ये पेप्टाइडोग्लाइकन बैकबोन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं. इस तरह हम बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बच सकते हैं. रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो सकती है. बैक्टीरिया स्वेल कर जाता है, रप्चर कर जाता है. वाटर सेल में एंटर होता है और हाई इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से बैक्टीरिया रप्चर कर जाता है. So this is the mechanism that we can protect ourselves from the bacteria. Next component is lipopolysaccharide. It is the outer membrane of the cell wall of gram-negative bacteria. इसे हम endotoxin कहते हैं. और endotoxin is a structure, is a component that causes diseases, symptoms of diseases such as fever and shock जब भी हमें कोई bacterial infection हो जाता है. इसे एंडोटॉक्सिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल वॉल का एक कंपोनेंट है. बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि बैक्टीरिया खुद सिक्रीट करता है, लेकिन एंडोटॉक्सिन इटसेल्फ सेल वॉल का एक कंपोनेंट है. लिपोपॉलीसेकेराइड्स की कंपोजिशन देख लेते हैं. 3 कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे पहले इसका लिपिड ए होता है, फॉस्फोलिपिड, जो कि टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है यानी कि सिम्पटम्स ऑफ डिजीज और इन्फेक्शंस जो भी बैक्टीरिया कॉज करें. देन इसको पॉलीसेकेराइड जो कि 5 शुगर से मिलकर बना होता है, वो लिपिड ए से अटैच्ड होता है. देन लास्ट इज आउटर पॉलीसेकेराइड जिसमें 25 रिपीटेड यूनिट्स ऑफ 3 to 5 शुगर्स हो सकते हैं.
इस आउटर पॉलीमरेज का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ओ एंटीजन होता है। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें हेल्प आउट करता है इन द लेबोरेटरी। फॉर एग्जांपल नाइजीरिया है आउटर लिपोपॉलीसेकेराइड कंटेनिंग फ्यू रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ शुगर। नेक्स्ट कंपोनेंट है टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड हमें पता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कंपोनेंट है, प्रोड्यूस आउट कर रहा होता है फ्रॉम द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर in only gram-positive cell wall. It is a polymer of either glycerol phosphate or ribitol phosphate. Some of the polymers of glycerol teichoic acid penetrate the peptidoglycan layer and covalently link to the cytoplasmic membrane, which cause it forming lipoteichoic acid. Sometimes lipoteichoic acid penetrate करता है cell membrane के साथ अटैच हो जाता है और बना देता है lipoteichoic acid. इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? एबिलिटी टू इंड्यूस सेप्टिक शॉक, दे एक्टिवेट सेम पाथवे एज एंडोटॉक्सिन्स, सो इट्स कॉज सिम्टम्स इन बैक्टीरिया का सिम्टम्स ऑफ द डिजीज. It also mediate the attachment of staphylococcus to mucosal cells. So इसके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इसे मेडिकली इंपॉर्टेंट बनाते हैं. सबसे पहले सेप्टिक शॉक कॉज करता है, सेकंडली ये एंडोटॉक्सिन की तरह वर्क करता है, थर्ड इज मीडिएट द अटैचमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द म्यूकस सेल्स. देन वी डिस्कस टेबल 2.3. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एसक्यूज भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं. आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नेम और गिव एनी 3 or 4 बैक्टीरिया जो कि ग्राम स्टेन नहीं लेते एंड गिव द रीजन व्हाई दे डोंट स्टेन बाय ग्राम स्टेनिंग, और अल्टरनेट माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बताएं कि वो किस अदर टेक्निक से स्टेन हो सकते हैं. तो सबसे पहले माइक्रोबैक्टीरिया है. हमने पहले पढ़ा माइक्रोबैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है उसमें लिपिड कंटेंट बहुत हाई होता है, रिच एंड माइकोलिक एसिड, सो डाई जो है वो पेनिट्रेट करके उसे कलर नहीं दे सकता. रिजल्ट्स दे आर नॉट स्टेन बाय ग्राम स्टेनिंग, लेकिन अल्टरनेटली हम इन्हें एसिड फास्ट स्टेन कर सकते हैं. टिपोनिमा पैलेडियम ये बहुत थिन होते हैं. एज रिजल्ट इन्हें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी या फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी से हम देख सकते हैं. माइक्रोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, वेरी स्मॉल होते हैं, इसलिए इनके लिए वी कांट हैव एनी टेक्निक फॉर देयर विजन. लेजुनेला न्यूमोफिलिया, इनकी प्रॉपर्टी है कि काउंटर स्टेन को बहुत स्लोली अपटेक करते हैं, सो वी हैव टू प्रोलॉन्ग द टाइम ऑफ काउंटर स्टेन फॉर देयर स्टेनिंग. क्लेमीडिया एंड बैक्टीरिया दे आर बोथ इंट्रासेलुलर एंड वेरी स्मॉल, सो अल्टरनेट अप्रोच फॉर क्लेमीडिया इज इंक्लूजन बॉडी इन साइटोप्लाज्म दैट वी कैन सी अंडर माइक्रोस्कोप. एंड बैक्टीरिया जेमसा स्टेनिंग हम यूज करते हैं बैक्टीरिया को देखने के लिए. नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. सेल वॉल की इनसाइड प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो कि कंपोज्ड होती है फोस्फोलिपिड बाइलेयर. इट इज केमिकली सिमिलर टू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द यूकेरियोट्स, बट यूकेरियोट्स हैव स्टीरोल इन देट बट प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव स्टीरोल. प्रोकैरियोट्स में एक एक्सेप्शन है माइटोप्लाज्मा जिसकी सेल वॉल में स्टीरोल भी प्रेजेंट होते हैं. इसके 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि आपने याद करने हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जनरेशन बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर्स ऑफ सेल वॉल एंड सेक्रेशन ऑफ द एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स. साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट एरियाज. इसमें मॉर्फस मैट्रिक्स होता है एंड इनर मैट्रिक्स होता है. मॉर्फस मैट्रिक्स में राइबोसोम, न्यूक्लियोटाइड, ग्रैन्यूल्स, मेटाबोलाइट्स एंड प्लाज्मिड्स प्रेजेंट हैं. इनर न्यूक्लियोइड रीजन होता है जो कि डीएनए प्रेजेंट होता है जहां पर राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं. यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में डिफरेंस होता है. यूकेरियोटिक का साइज 80s होता है व्हेयरएज प्रोकैरियोटिक का साइज 70s होता है, विद 50s लार्जर सब यूनिट एंड 30s स्मॉलर सब यूनिट. एंड इसी की बेसिस पर सिलेक्टिव एक्शन होता है एंटीबायोटिक्स का टू इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ, बिकॉज ह्यूमंस में प्रोटीन सिंथेसिस के राइबोसोम्स डिफरेंट हैं, प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट है, सो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स स्पेसिफिकली बैक्टीरिया पर एक्ट करती हैं. नेक्स्ट इज ग्रैन्यूल्स. ग्रैन्यूल्स सर्व एज अ स्टोरेज एरिया फॉर द न्यूट्रिएंट्स और इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रक्चर्स जो है वो डाइज के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल वोलेटिन एक हाई एनर्जी स्टोर्ड रिजर्व है जिसमें कंसिस्ट ऑफ polymerized metaphosphate. These are appears as metachromic granules. Metachromic granules red color stain होते हैं with methylene blue. These are the specific feature of the corynebacteria diphtheria जो कि diphtheria disease cause करता है. Next is nucleoid genetic material of the bacteria. Area of cytoplasm in which DNA is located is called nucleoid. DNA of prokaryote single होता है, circular molecule होता है. It consists of about 2000 genes. It has no nuclear membrane, no nucleus, no mitotic spindle, no histones. So bacterial DNA का major difference from the eukaryotic DNA is that कि bacterial DNA में introns present नहीं होते जबकि eukaryotic DNA में introns present होते हैं. Next is plasmid. It is a very important topic. इसमें से आपको बहुत frequently SQs आ सकते हैं. Plasmid are extra chromosomal double-stranded circular DNA molecule that is capable of replicating independently of bacterial chromosome. ये एक extra chromosomal structure होता है, double stranded होता है, circular होता है and replicate कर सकता है independently of the bacterial chromosome. Although plasmids are ectochromosomal, but they can be integrated into bacterial chromosome. Plasmid can be a part of the chromosome of the bacteria. There are several types of the plasmid. Transmissible plasmids वो होते हैं जो कि by conjugation technique एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं. They consist of dozen of genes and synthesized sex pili that is the specific feature for enzyme required for the transfer. They are present in few copies per cell. Usually transmissible plasmids ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं. dozen of genes present होती हैं, synthesize करते हैं sex pili को and enzyme for the transfer or present in few per copies. Non-transmissible plasmids है वो genes को transfer नहीं कर सकते. They are present in many copies per cell. Plasmid carry the genes for the following functional structures. So इसकी medical importance है. Antibiotic resistance genes are present on plasmids. Resistance to heavy metal genes are present in the plasmid. Resistance to ultraviolet radiation mediated by DNA repair enzymes जो कि plasmid से produce होती हैं.
पिलाई जो कि ढेर करते हैं बैक्टीरिया को टू एपिथेलियल सेल्स, वो भी प्लाज्मिड से सिंथेसाइज होते हैं। एक्सोटॉक्सिन जैसे कि एंडोटॉक्सिन होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव के एक्सोटॉक्सिन वो प्लाज्मिड्स की जीन्स इनकोड करती है। अदर प्लाज्मिड इनकोडेड प्रोडक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आर बैक्टीरियोसिन्स, दीज आर द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया जो कि बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया के लिए लीथल होते हैं। इसके दो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोड्यूसिंग पोर इन द मेम्ब्रेन, डिग्रेडेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए बाय डीएनए। बैक्टीरियोसिन्स ऐसे टॉक्सिन है जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है फॉर किलिंग अदर बैक्टीरिया। तो ये दो मैकेनिज्म हैं बैक्टीरिया को किल करते हैं। फर्स्ट इज डिग्रेड करता है सेल मेम्ब्रेन को बाय प्रोड्यूसिंग पोर्स इन द मेम्ब्रेन, और सेकंडली उसका डीएनए ही डिग्रेड कर देता है बाय डीएनए एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल E. coli जो है वो कॉलिसिन्स प्रोड्यूस करता है, एंड पायोसिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सीडोमोना aeruginosa. बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस बैक्टीरियोसिन्स हैव स्ट्रक्चरल एडवांटेज इन कंपटीशन फॉर फूड। सो बैक्टीरिया जो है वो फूड और सर्वाइवल के लिए compete करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग दीज बैक्टीरियोसिन्स। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम्स in rhizobium and the root of the root nodules. They are also plasmid coated tumors in plants also caused by plasmid coated enzymes. Several antibiotics प्लाज्मा से हम इनकोड कर सकते हैं, वेरियस डिग्रेडिंग एंजाइम्स प्लाज्मा से इनकोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोसोम्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ डीएनए दैट कैन मूव रेडिली फ्रॉम वन टू अनदर विद इन द बैक्टीरिया। सो ट्रांसपोसोम्स जो है वो जंपिंग जीन्स भी इन्हें कहते हैं। दे कैन मूव रेडिली, दे आर द पीसेस ऑफ डीएनए जो कि एक जगह से दूसरी जगह ऑन द सेम बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। They are moved by replicating their DNA, inserting new copy into the other side. They are called replicative transposition. दो तरह की होती है, replicative हो सकती है, direct transposition होती है। replicative transposition में क्या होता है, that part of DNA जिसमें ट्रांसपोर्ट होना है वो replicate होता है, next new site पर जाकर insert हो जाता है। But in direct transposition क्या होता है कि site of DNA वहां से remove होती है, next new site पर जाकर insert हो जाती है, इसमें कोई replication की जरूरत नहीं होती। ट्रांसपोसोम्स जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस एंजाइम, टॉक्सिन्स और मेटाबोलिक एंजाइम्स के लिए इनकोड करते हैं। along with that they also encode for mutations। टिपिकली जो ट्रांसपोसोम है 4 आइडेंटिफाइबल डोमेन्स होते हैं। फर्स्ट डोमेन्स होती है जो कि शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस होता है फॉर इन्वर्टेड रिपीट्स दैट इन्वॉल्व्स इन इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसपोसोम्स इनटू द रिसिपिएंट डीएनए, जो कि इंटीग्रेट करता है ट्रांसपोसोम को इन द नेक्स्ट डीएनए। सेकंड डोमेन इज द प्रोड्यूस एंजाइम्स दैट मीडिएट्स फॉर द एक्सीजन एंड इंटीग्रेशन प्रोसेस। सेकंड डोमेन का मेन पर्पस होता है कि एक्साइज करना है और इंटीग्रेट करना है फॉर दैट पार्ट ऑफ द डीएनए। थर्ड रीजन इज द जीन फॉर द repressor that regulate the synthesis of both transposes and a gene of the fourth domain encode for enzyme mediated antibiotic resistance. The first domain for the integration of transpose into the recipient DNA, second domain for the enzymes that mediate excision, third is for the repressor gene that regulate the synthesis of transpoases, and fourth is domain encodes for the antibiotic resistance enzymes. Antibiotic resistant genes जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं one bacteria to other by conjugation, primarily by the plasmids, but some by transposons called conjugative transposons capable of transforming antibiotic resistance as well. Transposons के थ्रू भी resistance antibiotic resistance gene ट्रांसफर कर सकती हैं, along with plasmids के साथ भी ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। ट्रांसपोसोम्स जो है वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट नहीं कर सकते, दे रेप्लिकेट एज अ पार्ट ऑफ डीएनए इन व्हिच दे आर इंटीग्रेटेड। सो दैट मींस कि ट्रांसपोसोम्स अलग से जाकर रेप्लिकेट नहीं होते। जो भी रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन होती है इसमें फुल पार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेट होता है, फिर उसमें ट्रांसपोसोम्स नेक्स्ट साइड पर जाकर इंसर्ट हो जाता है। इसके बाद एक टर्म है इंसर्शन सीक्वेंस। दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोसोम्स दैट हैव प्योर बेसिस सिंस दे डोंट कोड फॉर देयर ओन इंटीग्रेशन एंजाइम्स cause mutation in the size of integration. इंसर्शन सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिसमें बेस पेस बहुत कम होते हैं, एज अ रिजल्ट जो जीन्स इनकोड करते हैं इंटीग्रेशन एंजाइम्स को उसमें एब्सेंट होती हैं, वो इंटीग्रेशन एंजाइम्स को इनकोड नहीं कर पाते हैं, एज अ रिजल्ट इंटीग्रेशन साइट पर म्यूटेशंस कॉज हो सकती हैं। They can also be found in multiple copies at the end of larger transposons के एंड पर भी इंटीग्रेशन सीक्वेंस हो सकते हैं जो कि स्मॉल फ्यू बेसिस होती हैं जो कि इंटीग्रेटेड एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल वॉल। इसमें हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, कैप्सूल, फ्लैजिला, पिलाई, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोकैलिक्स। कैप्सूल हमने पहले पढ़ा कि आउटसाइड द सेल वॉल कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, उसमें आता है कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है, एक जेलटिनस लेयर होती है जो कि एंटायर बैक्टीरिया को कवर कर रही होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, शुगर कंपोनेंट होता है पॉलीसेकेराइड। डिटरमाइन द स्टीरियोटाइप्स, ये स्टीरियोटाइपिंग होती है कि एक बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप में डिफरेंट पॉलीसेकेराइड लेयर प्रेजेंट होती है। सो दिस इज स्टीरियोटाइपिंग। तो डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स प्रोड्यूस हो सकते हैं अगर बैक्टीरिया की डिफरेंट पॉलीसेकेराइड लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल 84 स्टीरियोटाइप्स ऑफ स्टेफिलोकोकस निमोनियाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इसकी इंपॉर्टेंट फॉर 4 रीजंस। फर्स्ट रीजन इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ विरुलेंस। विरुलेंस का क्या मतलब है कि इट्स प्रोटेक्ट्स द bacteria from being phagocytosed so that it can cause diseases. Negative charge on the capsular polysaccharide repels the negatively charged cell membrane of the neutrophil and prevent it from the being ingested. Phagocytosis कैसे प्रिवेंट करते हैं, कैप्सूल नेगेटिवली चार्ज होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज लेयर ऑफ न्यूट्रोफिल को रिपेल करता है, तथा बैक्टीरिया पैथोजेनेसिस से प्रिवेंट हो सकता है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये हम इसकी सरफेस पर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि
इसकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस एंटीबॉडी द कैप्सूल वॉल स्वेल ग्रेटली, दिस इज कॉल्ड क्वेलिंग रिएक्शंस। बैक्टीरिया में कैप्सूलर लेयर स्वेल कर जाती है इन रिस्पांस टू एंटीबॉडी, दिस इज कॉल्ड क्वेलिंग रिएक्शन, जो कि आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज यूजेस एंटीजन इन सर्टेन वैक्सीन्स, तो पॉलीस्क्राइड कैप्सूल एज एंटीजन वैक्सीन में यूज कर सकते हैं, जिसे हम इम्यूनोलॉजी में यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग वैक्सीन सो दैट वी कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम दैट स्पेसिफिक बैक्टीरिया। फोर्थ पॉइंट इज दे प्ले रोल इन एडहेरेंस ऑफ बैक्टीरिया टू द ह्यूमन टिश्यू, तो सो attachment of the organism with the mucous membrane epithelial cells of the human is occur through the capsule, so it's a major property. Next is flagella. Flagella is for motility, long whip-like appendage that move from the bacteria toward the nutrient and attractants called chemotaxis. So flagella क्या करता है, ये मूव करता है बैक एंड फोर्थ एंड बैक्टीरिया को टुवर्ड द न्यूट्रिएंट और एनी कीमोकाइन जो भी सिग्नल से रिसीव हो रहे हैं उनकी तरफ प्रोपाइल करने में हेल्प करता है। एक्ट एज अ प्रोपाइलर, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी सब यूनिट ऑफ सिंगल प्रोटीन। प्रोटीन इसमें क्या होती है, फ्लैजिलर होती है। एनर्जी कहाँ से आती है, एटीपी से, जो कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स से प्रोड्यूस होती है। कुछ बैक्टीरिया जिनमें एक फ्लैजिला होता है, some have many, some have flagella located at one end, some have located at all over the surface, so flagella के arrangement different हो सकते हैं different organisms. Spirochetes move by using flagella-like structure called axial filament. Spirochetes में flagella present नहीं होता, but flagella-like structure present होता है, जिसे axial filaments कहते हैं, wrap around the spiral-shaped cells to produce undulate motion. Flagella medically important होते हैं, क्यों होते हैं, because they cause urinary tract infection due to their motility. They can and move from urethra to upside to the urinary tract और bladder से urethra से bladder से upward kidney की तरफ ये migrate कर सकते हैं with the motility with the flagella that cause motility. And some species of bacteria identify in clinical laboratory, तो सो हम इन्हें clinical laboratory में इनकी motility की basis पर differentiate कर सकते हैं. Next is pili. Pili is a hair-like structure that extends from the cell surface. ये shorter होता है, straighter होता है as compared to flagella. इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो पेलन होती है, जो कि हेलिकल स्ट्रैंड्स में अरेंज होती है. इट्स फाउंड मेनली इन ग्राम नेगेटिव स्ट्रक्चर्स, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म. इट्स प्ले टू इंपॉर्टेंट रोल. फर्स्ट इज ये कि अटैच करता है टू द सरफेस ह्यूमन सरफेस रिसेप्टर्स के साथ, बट इसमें एक एग्जांपल लिखी है, म्यूटेंट्स ऑफ नाइजीरिया गिनोरिया डोंट हैव पिलाई आर नॉन पैथोजेन. जिनमें पिलाई प्रेजेंट नहीं होंगे वो नॉन पैथोजेनिक होंगे. नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ पिलाई, जिसे हम सेक्स पिलाई कहते हैं. ये कहते हैं अटैच बिटवीन मेल एंड फीमेल बैक्टीरिया ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, सो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल थ्रू सेक्स पिलाई हो सकता है. Glycocalyx. Sometimes question आता है, write a note on glycocalyx. Glycocalyx क्या है, slime layer भी कर सकते हैं. It's a polysaccharide coating that is secreted by bacteria and covers like film around the bacteria and adhere firmly to various structure. So it also helps in the adhesion of the bacteria with the surfaces. For example, skin, heart walls, prosthetic joints, and catheter. Glycocalyx is important components of biofilms such as, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का हार्ट में कैथेटर है, हार्ट वॉल्स में कैथेटर लगाया है, या फिर वो डायबिटिक है कैथेटर लगा हुआ है, या फिर नीडल्स जो है वो आईवी लाइन मेंटेन है, तो बैक्टीरिया वहां पर जाकर ग्रो कर जाते हैं और अपने अराउंड एक ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर बना लेते हैं, एक बायोफिल्म बनाते हैं. एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये इफेक्ट नहीं होते बाय एनी एंटीबायोटिक्स और एनी एंटीसेप्टिक्स जो भी हम उन पेशेंट्स को दे रहे होते हैं. ग्लाइकोकैलिक्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स ऑफ सीडोमोना एरिजिनोसा दैट कॉज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन सिस्टिक फिब्रोसिस. एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज Glycocalyx producing strain of Staphylococcus epidermidis and viridins streptococci that cause endocarditis. तो किसी भी पेशेंट को हार्ट वाल्व्स प्रोस्थेटिक जॉइंट हार्ट वाल्व्स को कैथेटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, और उसमें वहां ये ग्रो कर जाएगा और एंडोकार्डाइटिस कॉज कर देगा उस पेशेंट में. इट मीडिएट एडहेरेंस ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया सच एज स्ट्रेप्टोकोकाई म्यूटेंट्स टू द सरफेस ऑफ टीथ की सरफेस पर बैक्टीरिया जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स की हेल्प से अटैच हो सकता है. इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लैक्स दैट प्रिवेंट दैट इज द प्रिकर्सर ऑफ डेंटल कैरिसेस. इससे क्या होता है कि ये प्लैक के फॉर्म में डिपॉजिट होता रहता है, उसके बाद डेंटल कैरिसेस हो जाते हैं. नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बैक्टीरियल स्पोर्स. ऑल द बैक्टीरिया जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ टू जनरेशन हैं जो कि मेडिकल इंपॉर्टेंट ग्राम पॉजिटिव रोड्स हैं जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. इसमें एक जीनस बेसिलाई है जो कि एंथ्राक्स का एजेंट है, एंड क्लोस्ट्रीडियम है विच इंक्लूड्स एजेंट ऑफ टेटनस एंड बोटुलिज्म. स्पोर फॉर्मेशन क्यों होती है, क्योंकि अंडर एडवर्स कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशंस में कुछ बैक्टीरिया जो है वो हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स इन्हें स्पोर्स कहते हैं फॉर्म करते हैं, सो दैट दे कांट बी हार्म्ड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स. अब स्पोर फॉर्मेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि स्पोर फॉर्मेशन में जो आउटर लेयर बनाता है बैक्टीरिया वो किससे मिलकर बनी होती है, दैट इज dipicolinic acids, a calcium ion chelator is found only in spores. It is a thin catalytic coat that is responsible for remarkable resistance of spore to heat, dehydration, radiation and chemical. कोई भी अगर हाई टेम्परेचर है, डिहाइड्रेशन हो गई है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है, रेडिएशन है, केमिकल्स केमिकल एक्सपोजर है बैक्टीरिया को, तो सो दे कैन फॉर्म स्पोर्स. स्पोर हैज नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं होती, वो सिर्फ एक डोर्मेंट सिचुएशन में पड़े रहते हैं. जब भी वो फेवरेबल कंडीशन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उन्हें एक्सपोज होंगे, स्पेसिफिक एंजाइम स्पोर को डिग्रेड करेंगी, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स स्पोर्स में एंटर हो जाएंगे, वो जर्मिनेट करेंगे और पैथोजेनिक बैक्टीरिया दोबारा से बन जाएंगे. नोट दैट दिस डिफरेंशिएशन प्रोसेस इज नॉट मीन्स फॉर रिप्रोडक्शन.
since only one cell produce one spore that germinate into the one cell. The spore formation product जो spore बनते हैं ये they are not mean for reproduction. का क्या मतलब ये है कि spores जब भी spore की covering break करेगी तो एक बैक्टीरिया में कन्वर्ट होंगे and that bacteria can reproduce, लेकिन वो एक spore एक ही बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा. मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है spores की कि they are resistant to heat and chemical. As a result of their resistance, sterilization can't be achieved by boiling. So auto clearing करनी पड़ती है. auto clearing क्या है कि 121 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए अंदर स्पेसिफिक प्रेशर जो है वो स्टेरिलाइज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट को फॉर द मेडिकल यूज. नेक्स्ट टेबल 2.4 में इंपॉर्टेंट फीचर्स और उनकी मेडिकल इंपॉर्टेंस लिखी हुई है स्पोर्स की. यहाँ फिगर 2.8 में आप देख सकते हैं स्पोर फॉर्मेशन क्या कैसे होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोड्यूस की है इनसाइड पर, सेप्टम बन गया, देन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर बन गई है एंड द केराटिन कोट कवरिंग हुई है एंड द स्पोर इज रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट एंड जब इसे फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो स्पोर ग्रो कर जाएगा. इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? दे आर हाईली रेजिस्टेंस टू हीटिंग. स्पोर्स आर नॉट किल्ड बाय बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस बट आर किल्ड एट 121 डिग्री सेल्सियस. इसकी मेडिकल इंप्लीकेशन क्या होगी कि हम अपनी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट्स के लिए स्टेरिलाइज करेंगे. Next is they are highly resistant to many chemicals such as disinfectants due to thick keratin coat of the spore. So इसके लिए specific sporicidal agents हम use करेंगे to kill spores. They can survive for many years, especially in the soil. Why worms contaminated in soil such as infected with the spores cause disease such as tetanus. So जो भी organisms जो भी spores हैं वो soil में grow कर सकते हैं, उनके लिए जो है वो हमें specific जैसे कि tetanus के लिए tetanus के injections देने पड़ते हैं to kill that spores. They exhibit no measurable metabolic activity, so they don't have any metabolic activity. तो इसके मेडिकली हम कैसे अप्लाई करेंगे? Ineffective antibiotics are ineffective against spores because antibiotics acts by inhibiting metabolic pathways of bacteria. Also spore coat is impermeable to antibiotics. So अगर spores हैं तो उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं होती हैं क्योंकि एंटीबायोटिक्स उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इनहिबिट करती हैं. बट स्पोर्स में ऑलरेडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है तो सो दे कांट बी किल्ड और देयर एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड. Spores form when the nutrients are insufficient but germinate from bacteria nutrients become available. तो spores often infection sites पर present नहीं होते क्योंकि infection sites पर already nutrients limit होते हैं, so they can't be grown at that site. Spores are produced by membrane members of only two genera of bacteria of medical importance such as Bacilli and Clostridium, both of which are gram-positive bacteria. Spores जो है वो सिर्फ Clostridium और Bacilli genus की organism produce कर सकते हैं. Infections transmitted by spore are caused by either Bacilli or Clostridium. जब भी spore forming infections cause होंगे, स्पोर्स से इन्फेक्शन कॉज होंगे तो हमारा डायरेक्ट डायग्नोसिस आना चाहिए कि बैसिलस या क्लोस्ट्रीडियम से किसी एक की वजह से डिजीज कॉज हुई है. हियर द चैप्टर एंड.